हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Production agreement on price assurance and farm services bill 2020. They have expressed no confidence against the Honorable Deputy Chairman desire to move a motion for this removal. I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. In view of the continuous disruption of the House, see, you are seeing now. If anybody has missed yesterday, you can see it today. And observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seat and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption in the House, and the division could not have taken place, as I explained to you earlier. Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliamentary Affairs, he want to move a resolution. Please. Sir, I move that the following members be suspended from the services of This is not the way. Please sit down. for a period You have been named. You for can't the speak. remaining part of the current session. राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। वेंकैया नायडू ने इस समय रूलिंग दी है। कल के हंगामे के लेकर हम नीरज पांडे के पास चलते सीधे। नीरज, क्या अपडेट है? क्या राज्यसभा में अनाउंस हुआ है? जी बिल्कुल, राज्यसभा में आज जो वेंकैया नायडू जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कल का जो दिन था वो बहुत बुरा दिन था, जो होना चाहिए था नहीं हुआ। उन्होंने कोरोना के जो नियम हैं उनको भी याद दिलाई कि आप लोगों ने जो किया उससे कोरोना के जो नियम हैं, उनकी जो गाइडलाइंस है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोग ला रहे हैं उपसभापति के खिलाफ, उसे मैं नकारता हूं, उसे मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि पहले ही उपसभापति ने आपसे साफ कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर जाइए, आप लोग बिल पे नहीं आइए। आप लोगों ने स्वयं ही उल्लंघन किया है, तो इसलिए आपकी जो मांग है पहले ही उस पर खारिज होती है। तो सीधे तौर पर वेंकैया नायडू ने लेकिन नीरज, जो उम्मीद की जा रही थी कल हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई का आज कोई भी घोषणा नहीं की है सभापति ने। जी बिल्कुल, सभापति ने कहा है कि कार्रवाई आपके खिलाफ भी, ये बात उन्होंने अभी अपने बात में कहते समय कही है कि देखिए आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, श्री सैयद नजीर हुसैन, श्री रिपुन बोरा, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dera Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House. Those members who have been called, leave the House. Now, as for the business. 8 सांसदों के नाम लिए हैं यहाँ पर वेंकैया नायडू ने, और साफ तौर पर इन 8 सांसदों के नाम लेकर निलंबन की जो कार्रवाई थी, जिसको लेकर अंदेशा था कि हो सकती है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का नाम इसमें है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम इसमें है। 8 नाम खुद वेंकैया नायडू ने लिए हैं। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, जी बिल्कुल, डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव समेत 8 लोगों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कल की जो घटना हुई, कल जिस तरह से राज्यसभा में बेल में जाकर बिल की कॉपी फाड़ने का प्रयास किया गया, माइक तोड़े गए और उसके अलावा नारेबाजी की गई, मार्शल के साथ झगड़ा किया गया, उसको धक्का मुक्की की गई, मेज पर चढ़कर तमाशा किया गया, और उसको लेकर आज
सभापति वेंकैया नायडू ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नीरज, 8 दिन का निलंबन मतलब तो सत्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो सत्र वैसे भी छोटा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने पहले इशारा दे दिया था कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हंगामे को चलते वो लगातार जब वो नहीं माने तो उन्होंने फाइनली कह दिया कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अपनी शिकायत दी और उस शिकायत को आधार बनाते हुए इन सभी सांसदों को, खासकर संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, राजीव सातव और निपुण बोरा, इन 4 लोग हैं, 8 लोगों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा में ये बड़ी कार्रवाई अभी तक लोकसभा में ऐसा देखने को मिलता था। कि हैव बीन सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ द सेशन, यानी उन्होंने अपने ही आदेश में ये भी साफ कर दिया कि जब तक सेशन चल रहा है तब तक के लिए वो सस्पेंड कर दिया गया और कितने दिनों के लिए ये भी उन्होंने साफ किया। लेकिन क्या यहीं पर विरोध खत्म हो जाएगा? जिस बात का विरोध वो कर रहे हैं वो विरोध तो जारी रहेगा। अब सदन से बाहर जाने को भी उनको कह दिया गया। उसके बाद क्या, जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है गांधी मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रदर्शन होता है, यानी अभी हंगामा होना है और निश्चित रूप में हंगामा अभी जारी रहेगा। अभी वहां से निकलकर ये लोग आएंगे, गांधी मूर्ति के पास हंगामा करेंगे। इसके अलावा अब हो सकता है कि इसके बाहर, यानी कि जैसा कि हरियाणा और पंजाब में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो ये लोग वहां भी जाके, वहां फील्ड पे भी जाके प्रदर्शन करेंगे। अभी हो सकता है कि लोकसभा में भी इसकी कुछ गूंज दिखाई पड़े। लोकसभा में भी शाम को कांग्रेस और दूसरे जो दल के नेता हैं वो लोग भी प्रदर्शन करें इस सस्पेंशन के खिलाफ, क्योंकि अभी याद हो कि पिछले सत्र से पिछले उसमें जब कांग्रेस के केरल के जो सांसदों ने स्मृति ईरानी और दूसरे लोगों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया था, तो उसके बाद कई सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे और उसके बाद भी उन लोगों ने काफी हंगामा किया था। तो ये लोकसभा में तो देखने को अक्सर मिलता था, लेकिन राज्यसभा में पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली और इस वजह से आज राज्यसभा में 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए, यानी कि अब कह सकते हैं आप कि इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नीरज, अब लग रहा है कि जो तीसरा बिल जो आज आना था, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, वो शायद शांति से पास हो जाए, क्योंकि अब 8 सांसदों पर कार्रवाई हो चुकी है। और जिस तरह की तस्वीरें कल राज्यसभा में देखने को मिली थी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीठ के सामने टेबल पर चढ़कर नारेबाजी की थी। उसके बाद अब लग रहा है कि बाकी सांसदों को इस कार्रवाई के बाद सीख मिलेगी। जी बिल्कुल, केवल नारेबाजी ही नहीं की थी विकास। नारेबाजी के बाद जब मार्शलों ने उन्हें नीचे उतारकर बाहर करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक मार्शल का गला भी दबाया, बल्कि गले में हाथ लगा के उसे ठेला भी। और ये कहीं भी राज्यसभा की मर्यादा के पक्ष में नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप में विरोध का एक तरीका होता है, आप विरोध कर सकते हैं, बेल में भी जाते हैं, बेल में तो सबसे अंतिम क्षण में जाते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि आप मार्शल के गले में हाथ लगा दें, किसी को धक्का दे दें, किसी को मार दें। ये एक संसदीय भाषा है। जब आप संसद में, एक उच्च सदन में इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो बाहर लोग क्या देख रहे हैं, क्या आपको समझ रहे हैं कि मैं आ रही हूँ आपके पास नीरज। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उपसभापति पर बड़ी खबर आ रही है। उपसभापति को लेकर विपक्ष ने नोटिस दिया था, वो खारिज हो चुका है। हरवंश राय के साथ कल दुर्व्यवहार हुआ था। रविकांत, क्या अपडेट? सभापति वेंकैया नायडू ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने विपक्ष के सांसदों ने जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था, उसकी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा। कल की पूरी कार्यवाही में जो हंगामा हुआ और डिप्टी स्पीकर का रोल क्या था, इन 2 बातों को उन्होंने ध्यान से देखा और फिर ये पाया कि जो आरोप है कि बिना विपक्ष को सुने बिल को पास किया गया, तो ये आरोप निराधार है, क्योंकि इसका तर्क दिया डिप्टी स्पीकर ने कि चूंकि लगातार डिप्टी स्पीकर शांत रहने और अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन सांसद हंगामा करते रहे, इसलिए डिवीजन नहीं हो सका। यानी जो वोटिंग होती है वो वोटिंग नहीं होने दी विपक्ष ने। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में बिल के पास होने में डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है कि डिवीजन नहीं हो सका, वोटिंग नहीं हो सकी, जो आरोप है डिप्टी स्पीकर के ऊपर। इसलिए जो प्रस्ताव है उसका एक रूलिंग भी दी। 226 राज्यसभा की कार्रवाई का जो रूल बुक है उसके अनुसार 226 रूल जो है वो कंडक्ट से संबंधित होता है और उसके अनुसार एक 90C नाम का रूल है जिसके अंतर्गत 14 दिन का समय होता है रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 दिन का समय होना चाहिए। चूंकि इस सत्र में, इस मानसून सत्र में 14 दिन अब नहीं बचे हैं, 14 दिन का समय नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने आप ये जो प्रक्रिया है ये निरस्त कर दी गई है।
जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस थी उसे निरस्त कर दिया गया है। यानी रविकांत, दो बड़े मोर्चों पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। माना जाए अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया था उसे भी खारिज कर दिया गया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपकी लड़ाई तब मजबूत होती है जब आप संसद के भीतर आवाज उठा पाते हैं। हालांकि आपके आंकड़े, आपका नंबर बहुत सीमित है, लेकिन अंदर रहकर जो आप अपनी बात कह पाते हैं। अब आपको कह दिया गया है कि आप सस्पेंड हो गए हैं टिल द रिमेनिंग सेशन, तो आप तो कमजोर पड़ गए। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष अपनी ही जो प्रक्रिया वो अपना रहा था अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, उसमें संसद के अंदर कम से कम घिर गया है। भले ही किसानों के इस बिल का जो उन्होंने विरोध किया, इतना हंगामा किया, उसमें राजनीतिक रूप से वो निश्चित रूप से जनता तक अपनी बात ये पहुंचा पाए हैं कि उन्होंने बिल का विरोध किया। ये बात विपक्ष सिर्फ समझा पाया है, लेकिन सदन के अंदर वो सरकार से बुरी तरीके से उसकी हार हुई है। रविकांत, और साथ ही साथ बता दें बात आज साफ हो गई कि संसदीय मर्यादा सर्वोच्च है। संसद के भीतर आप विरोध कर सकते हैं, विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन संसदीय मर्यादा आप नहीं लांघ सकते हैं। बिल्कुल। और कल जो हंगामा हुआ, बिल्कुल रविकांत, आएंगे आपके पास। इस बीच एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, उस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। राज्यसभा 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, यानी कि करीब 20 मिनट बाद, क्योंकि अब 10 बजे में करीब 40 मिनट है, तो 10 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। 9:40 इस वक्त हो रहा है, 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 10 बजे एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इस बड़ी अपडेट पर लगातार हर ताजा खबर आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्ते भारत।